Thank you so much, everybody. Once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number 2 of your political science book. That is chapter number 2, federalism. Okay. So class, basically, till now we have seen, we have talked about, we noted that federal systems have two or more tiers of the government. Okay, we talked about the federal system, and we talk about like in federal system of governments there are two or more level of the governments. We also discussed about the two tiers of the government in our country. We talked about their powers, like how their powers are distributed according to their language, according to their language, according to their region, according to their uh, relations between center and state. We talk about two tier system of our country also. But as you all know, like our country is a very vast country, and it cannot be run only through these tiers like central government and state government. It is not possible for them to run the country very smoothly with run the country with the highest population in the world, and like one of the highest population in the world, and uh, without like having local governments. So it is very difficult for our governments, for central government and state government. If they have only these two tiers in our country, it is not possible for them to run the country very smoothly. Okay, so a vast country like India cannot be run only through these two tiers. We have like states in India as large as independent countries of the continent यूरोप. यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनसे बिगर तो हमारे स्टेट्स हैं. हमने देखा लास्ट चैप्टर में वी टॉक अबाउट बेल्जियम, एंड Belgium is a country with the just as our Haryana state, they have that region only, and that whole region is an independent country. And Haryana is just one of the smallest one of the state of our India, right? So, in terms of population, also, we talked about in terms of territory, in terms of population, also, Uttar Pradesh is bigger than Russia. In terms of region, Russia is very vast country. In terms of region, it has a बहुत सारी लैंड है उनके पास. उनका जो लैंड इवन उनके तो टाइम जोन्स भी 9-10 तो टाइम जोन्स है, टोटल 11 टाइम जोन्स है, आई नो. तो 11 टाइम जोन्स है, और उनका लैंड कितना बड़ा है. बट पॉपुलेशन के टर्म में उत्तर प्रदेश हमारा जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, और वो काफी बड़ा है. ठीक है, महाराष्ट्र जो है जर्मनी से भी बड़ा है. So many of these states are internally very diverse, and all those states, like if we talk about Tamil Nadu, we talk about Maharashtra, Rajasthan, all these states are very diverse in nature. बहुत different है. So it is not possible for our government, for our country to smoothly run all these countries, all these states, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है. तो देयर इज अ नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट. एक पावर को डिवाइड करने की जरूरत है. ठीक है, एंड इस पावर को हम डिवाइड कैसे करते हैं? इस पावर को हम डिवाइड करते हैं through decentralization. Now, what is this decentralization? This is the next topic of your book, decentralization in India. Decentralization means when power is taken away from the central and state governments and given to the local government, it is called decentralization. क्या होता है? When we took away the power of central government and state government and give that power to the local government.
दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को उनकी लोकल गवर्नमेंट को वो पावर दे देते हैं, उसी चीज को, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स लाइक यू कैन से डिवाइड पावर। Decentralization divide power. When power is taken away from the central government to the state government and given to the local government, it is called decentralization. So there is a huge need for decentralization. There was a huge need of decentralization in India, as because as you know, our country is a very vast country. Uh, one of the most one of the populous country in the world. Our country is one of the populous country in the world, and we need a third tier of government, which we call local government. हमें बहुत जरूरत है for the smooth running of the government, for the smooth running of the democracy. As you all know, the India is a democratic country. तो उसे डेमोक्रेटिकली और डेमोक्रेटिकली बनाने के लिए, उसको स्मूथली रन करने के लिए, व्हाट वी नीड एक हमें लोकल गवर्नमेंट की थर्ड टायर की नीड जो है, नीड की रिक्वायरमेंट होने लग गई थी, राइट। सो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आया था। So the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी गली है, गली में सफाई नहीं हो रही है, क्या आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे डायरेक्टली कि मेरे गली में सफाई नहीं हो रही है, यहाँ पे तो बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, डेंगू होने का खतरा है, बहुत सारी डिजीज हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे, लाइक महीने लग जाएंगे आपको। ठीक है, डायरेक्टली वो पहुंच ही नहीं पाएगा, आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो कुछ ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं जो लोकल लेवल पे बहुत कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है जो लोकल लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो सकते हैं। आपको एग्जाम्पल भी दिया मैंने। तो जो एक बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन का, वो यही था कि हम लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं, वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम क्या करें, उसे सेटल करने की कोशिश करें। एंड एज यू ऑल नो, लोकल पीपल जो है अपने डिसीजंस को ज्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं अगर हमारा कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा लोकल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वी ऑल आर राइट लाइक राजस्थान, बिलोंग टू राजस्थान, एंड हम एक कॉमन लैंग्वेज जानते हैं राजस्थानी। ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग हियर कि वी ऑल नो लाइक मारवाड़ी। ठीक है, तो हम एक मारवाड़ी, एक लोकल लैंग्वेज जो है यहाँ की जानते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर वो हमारी लैंग्वेज जानेगा, वो मारवाड़ी जानेगा, तो हम आपस में क्या है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। वी कैन कम्युनिकेट स्मूथली, वी कैन कम्युनिकेट इजीली। ठीक है, हो सकता है हमें कुछ लीगल लैंग्वेज की यूज ना करना पड़े। ठीक है, हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो ओपिनियंस है वो इजीली क्या कर पाएंगे, उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सामने रख पाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है और लोकल पीपल के लेवल पे, लोकल सिटीजन्स के लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग में वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो क्या कर पाए, चूज कर पाए, जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, वो सॉल्व हो सके। इवन उन्हें पता होता है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें हमारे लोकली, हमारे फॉर एग्जांपल लाइक दिखाने का कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लो, फॉर एग्जांपल आप जेएनवी कॉलोनी ही ले लो। उस एक रिप्रेजेंटेटिव को पता है मुझे बस इस कॉलोनी को,
का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ही नोज कि उसके पास इतनी पावर है कि वो उस कॉलोनी का ही जो भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है तो उस जेएनवी कॉलोनी की प्रॉब्लम्स को वो सही कर सकता है। अगर यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है और यहाँ का हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव का उसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी में फोकस है। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में या किसी भी पर्टिकुलर चीज में फोकस रहता है और आपको पता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, तो आप वहां का डेवलपमेंट बहुत इजीली कर पाते हो। तो दैट्स वाई लोकल पीपल और लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी यही करते हैं कि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम लोकल लेवल पे क्या पॉसिबल डायरेक्टली लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली लोगों से वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके क्या ओपिनियंस है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस हेल्प्स, ये सारी चीजों को सोचते हुए क्या है, एक लोकल गवर्नमेंट जो है एक बेस्ट वे है, ठीक है। हमने हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने रियलाइज किया कि लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी, अगर हमें अपने डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाना है तो इट इज द बेस्ट वे कि हम एक लोकल गवर्नमेंट लेकर आए, ठीक है। तो बिकॉज लोकल गवर्नमेंट रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, सो ये जो थर्ड टायर आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आप लोकल गवर्नमेंट की जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, बेटर भी, ये बेटर नेम है। और ये दिस इज द थर्ड टायर ऑफ आवर इंडिया, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। So class, the need for decentralization was recognized in our constitution, ठीक है। पहले नहीं था decentralization, yes you can say one of the guiding, DPSP जरूर रहा है, GSPS आपका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जरूर रहा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉलिसी नहीं थी कि लोकल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड थी कि हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेके लोकल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट जो है वो वर्क बहुत स्मूथली कर पाएगी। तो उसके बाद से बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं हमारे, लाइक 1950s के बाद बहुत अटेम्प्ट्स हुए कि हम डिसेंट अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर लिए विलेजेस और टाउन्स में, ठीक है। एंड इवन पंचायत होनी चाहिए विलेजेस में, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज होनी चाहिए, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा नीड रही है, ठीक है। और इलेक्शंस होने चाहिए। पहले क्या होता था, ठीक है, 1992 से पहले की बात बता रही हूँ, पहले जो पंचायत थे या विलेज लेवल पे इलेक्शंस जो है डायरेक्टली नहीं होते थे। जो मेन कंट्रोल होता था वो किसके पास होता था, वो रहता था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहता था। तो हम उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते हैं कि वो जो डेमोक्रेसी थी या वो जो गवर्नमेंट थी लोकल गवर्नमेंट, उसके पास जितनी पावर दिखाई जा रही है उतनी पावर है, बिकॉज वहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस ही नहीं थे, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ही नहीं था, ठीक है। सो बहुत ही कम, यू कैन से there was very little decentralization in effective terms pehle. So a major step towards decentralization was taken in the year 1992. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, एक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया हमारे 1992 में, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग एक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको उसको पावर में लेकर आया गया, पावर में लेकर आए वो। एंड द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, और इस टायर को बहुत इफेक्टिवली ये टायर जो है, ये आपका जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या करे, इफेक्टिवली वर्क करे। तो उसके क्या कुछ की फीचर्स थे, क्या थे कुछ की फीचर्स, देयर आर की फीचर्स ऑफ थ्री टायर डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर दीज आर, it is very important question class,
बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि फर्स्ट वन इज डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट आर द key features of third tier democracy, describe the major changes introduced by the government in the year 1992 to make the local government more powerful. So ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना. सो की फीचर्स ऑफ थ्री टायर डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइजेशन का आप क्या बोलोगे, जिससे कि थर्ड टायर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया. It is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. First feature, it is constitutionally mandatory कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नेसेसरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस. हमारे इंडिया में जो टेन्योर है इलेक्शन का कितना है, 5 years का टेन्योर है, ठीक है, एक जो टेन्योर रहता है गवर्नमेंट का 5 years का है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर एक रेगुलर क्लास इंटरवल में जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का जो है इलेक्शन होना चाहिए. ओके. Secondly, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. Now, local bodies में seats को reserve की गई, elected bodies में seats को reserve की गई. Even executive head जो होंगे and the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, elected bodies और executive heads के लिए जो है seats reserve की गई शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए. और क्यों की गई, जिससे कि इक्वालिटी रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है मौका मिले. ये जो बिछड़ी हुई आप बोल सकते हो, बिछड़ी हुई जो कास्ट है, ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो भी अपनी कास्ट को या फिर अपने आप को डेवलप कर सके. तो इन लोगों के लिए सीट्स क्या की गई थी, रिजर्व की गई थी लोकल लेवल पे. एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है सीट्स रिजर्वेशन थी. ऐसा नहीं था कि हाफ पॉपुलेशन जो है, हाफ सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए आपने कर दिया. अब राजस्थान में फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के लोग ही नहीं है, तो वहां पे हम कैसे करेंगे. तो इट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दोस पर्टिकुलर कम्युनिटी. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उनकी और उसके अकॉर्डिंग उनका रिजर्वेशन किया गया है. नेक्स्ट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन. जितनी भी पोजीशंस थी, चाहे वो मेयर की हो, चाहे वो पार्षद की हो, चाहे वो जिला परिषद की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, किसी की भी हो, ठीक है, 1/3 पोजीशन जो है वुमेन के लिए रिजर्व किया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है पार्टिसिपेट करें. ठीक है, उनका भी जो है कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. ये लोकल लेवल पे वुमेन रिजर्वेशन हुई, ठीक है, कि वुमेन पोजीशन के लिए रिजर्वेशन हुई. Next, state election commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections. हर एक स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, हर एक स्टेट में, जो पंचायत और म्यूनिसिपल के इलेक्शंस करवा सके. ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन है हमारे इंडिया में, एक तो सेंट्रल लेवल पे है और उसके बाद हर एक स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन है. जस्ट लाइक हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर होते हैं, जस्ट लाइक दैट एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी क्या है, एस्टैब्लिश किया गया हर एक स्टेट में. Next, the state governments are required to share some power and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब देखिए, the state governments are required to share some powers. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, हमने सब्जेक्ट्स की बात की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, हमने तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़े, बट कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक 29 और 30 अप्रोक्सीमेटली, उन कुछ सब्जेक्ट्स की जो पावर है, कि उनसे रिलेटेड जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई थी. रेवेन्यू, ऑब्वियसली अब पैसा भी चाहिए होगा, तो रेवेन्यू
की भी जो पावर है, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई। और ये जो नेचर है हमारा, शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगेन आई टोल्ड यू, अब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि स्टेट के रिसोर्सेस कितने हैं, या उस स्टेट में एग्रीकल्चर, कौन सा एग्रीकल्चर क्रॉप जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर वहां पे माइनिंग हो रही है, या जो भी उनका, जैसे टूरिज्म है, किसी स्टेट में ज्यादा टूरिज्म ज्यादा है, वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह ज्यादा नहीं है, तो इट डिपेंड्स कि उस स्टेट का नेचर क्या है वहां पे, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट टू स्टेट इन पावर्स को लोकल गवर्नमेंट के साथ डिवाइड किया गया है। मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई रिजिडिटी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को इन सब्जेक्ट्स में लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी ही पड़ेगी। नो, according to the need and according to the nature of the state, local state government share powers with local government. Okay, so these are the key features of you can say key features of the third tier। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी आपके चेंजेस हुए थे 1992 में, जो चेंजेस आए थे उससे रिलेटेड जो पावर्स थे, जो चेंजेस हुए थे, वो ये था। पहला कि इलेक्शंस रेगुलरली होना चाहिए। सेकेंडली, सीट्स रिजर्व होनी चाहिए इलेक्टेड बॉडीज में शेड्यूल का SC ST और अदर OBCs के लिए। 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था वुमेन के लिए। हर एक स्टेट में इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश कर दिया गया था, जो रेगुलर क्लास इंटरवल में इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। एंड द फिफ्थ वन इज स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड, स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट के साथ अपनी कुछ पावर्स को शेयर करेंगे। सो क्लास, डायरेक्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसे पढ़ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब डिसेंट्रलाइजेशन जो है लोकल लेवल पे, ठीक है, 2 पार्ट्स में किया गया था। फर्स्ट वन इज पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन, इट इज एट द विलेज लेवल, एंड द सेकंड वन इज द म्युनिसिपैलिटीज, जो अर्बन लेवल पे है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, लाइक अगर किसी स्टेट, किसी रीजन की अगर पॉपुलेशन 25,000 है, तो 25,000 तक की पॉपुलेशन के लिए क्या है, वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। अगर 25,000 और अबव है, ठीक है, 1 लाख तक है और वैसे है, तो वहां उस स्टेट, वहां पे क्या होती है, वो एरिया अर्बन एरिया कहलाता है, और वहां पे आपकी म्युनिसिपैलिटी होगी। ओके, सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। जो रूरल विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होती है, उसे हम पंचायती राज बोलते हैं, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एट द टॉप लेवल जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, सेकंड ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है, और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, विलेज लेवल पे आप बोल सकते हो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगेन यहाँ पे एक पिरामिड बनाया है, तो इनकी पावर्स और जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो जो जितने हायर पोस्ट पे उसके वहां पे उतने ही कम मेंबर्स हैं, बट उनके पावर ज्यादा है। ठीक है, ग्राम पंचायत में लोग बहुत ज्यादा हैं, लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बट उनके डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ी कम होती है। ब्लॉक लेवल पे अगेन जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट होता है, जस्ट लाइक दैट जिला परिषद, पंचायत समिति और ये ग्राम पंचायत है। लोग कम होते हैं यहाँ पे टॉप लेवल पे, पर उनके डिसीजन जो पावर है उनके पास ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हैं। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, जितने भी सिटीजन्स होते हैं उस विलेज के, उसको हम ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा बोलते हैं, ग्राम पंचायत होती है। council consisting of several ward members often called पंच and a president और सरपंच। ठीक है, 5 लोगों का जो वार्ड होता है, ठीक है, नॉर्मली 5 जो वार्ड के मेंबर्स होते हैं उसमें से 5 जो है इम्पोर्टेंट मेंबर्स को या इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है, और उसमें से एक जो है सरपंच या प्रेसिडेंट किया जाता है, और उन 5 को हम पंच बोलते हैं, जो काउंसिल्स होती है। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज और वार्ड। ये जो 5 लोग हैं, या जो सरपंच है, कैसे चूज किया जाता है, 5 ये जो जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है आपके विलेज की या वार्ड की, ठीक है, वार्ड जैसे अब
अब बीकानेर में देखते हो वार्ड नंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड किया जाता है। तो ये डायरेक्टली जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट एज क्या है, 18 ईयर्स एंड अबव, हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, दे हैव द राइट, राइट टू वोट। सो एडल्ट पॉपुलेशन जितने भी है वो डायरेक्टली इलेक्ट कर सकती है अपने विलेज के सरपंच को या प्रेसिडेंट को। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे विलेज के लिए जो ग्राम पंचायत है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है। नाउ सेकेंडली, द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंडर वर्क करती है, सुपरविजन में वर्क करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वोटर्स होते हैं, और ग्राम सभा और विलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो जितने भी विलेज के सिटीजन्स हैं 18 इयर्स एंड अबव, वो ग्राम सभा के क्या है, मेंबर्स हैं, और वही वोटर्स होते हैं। एटलीस्ट 2 या 2 से 3 बार जो है वो एक पंचायत में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, किस लिए, टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, कि आपके विलेज में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो क्या बजट होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस चीज की डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि वाटर डेवलपमेंट करवाना है, रोड डेवलपमेंट करवाना है, एक्सेट्रा, जो भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 से 3 बार एक बैठक होती है, आप बोल सकते हो बैठक बोल सकते हो, या ग्राम पंचायत बैठती है और वो डिसीजन लेती है। नाउ व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, ठीक है। पंचायत समिति बोल लो, ब्लॉक लेवल बोल लो, मंडल लेवल बोल लो, जो सेकेंड लेवल है वो बनता है पंचायत। ग्राम पंचायत, जब बहुत सारे ग्राम पंचायत, बहुत सारे, एक बीकानेर के जितने भी गांव हैं वहां के जो ग्राम पंचायत है, जब आपस में पंचायत जब आपस में बैठती है, उसको हम ब्लॉक पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल या मंडल बोलते हैं। The member of the panchayat samiti representative is elected by all the members or all the panchayat members in that area, ठीक है। जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं वो पंचायत समिति जो है रिप्रेजेंट किसको करती है, जितने भी पंचायत पंच होते हैं, ठीक है। 4-5 विलेज है, 4-5 विलेज के जितने भी 5-5 पंच हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अपने अपने गांव के। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में अब जितने भी पंचायत समितिज और मंडल्स हैं, अब बीकानेर में फॉर एग्जाम्पल 10 विलेजेस को मिला के एक पंचायत समिति बना दी, तो जितने भी विलेजेस आते हैं, जितने भी ये पंचायत समिति आती है, वो जब साथ में मिलते हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में, या फिर कोई भी डिसीजन लेते हैं उन सब का मिला के, तो उसको हम जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं। So, members of the Lok Sabha, MLAs of the district, and some other officials of other district level bodies are the members of the जिला परिषद। कुछ members होते हैं लोकसभा के, कुछ members हो गए, क्योंकि हर एक स्टेट से लोकसभा के members होते हैं, तो लोकसभा के members हो गए, जो डिस्ट्रिक्ट के MLAs हैं, या जितने भी इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज पे, वो कौन होते हैं, वो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। नाउ रूरल लेवल पे बात हो गई, अब हम बात करते हैं अर्बन लेवल पे। अर्बन लेवल पे क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है, राइट। अब जैसे बीकानेर के बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, बट बीकानेर की खुद की अगर हम बात करें, ठीक है, जो मेन सिटी है हमारी, यहाँ पे ये बीकानेर इज एन अर्बन एरिया, बीकानेर इज अर्बन एरिया, तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, ना कि पंचायत होती है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम बीकानेर में एक पंचायत बैठाएं, कितने लाखों लोग रहते हैं, तो पंचायत बैठानी तो मुश्किल है ना, तो यहाँ पे इसलिए म्यूनिसिपैलिटी होती है। तो रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होते हैं, अर्बन एरिया में क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखो, अब बिग सिटीज और स्मॉल सिटीज भी होती है। अब बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, स्मॉल सिटीज में म्यूनिसिपल काउंसिल्स होते हैं, ओके। जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है
कौन कंट्रोल करता है उनको? इलेक्टेड बॉडी। ऑब्वियसली जो लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोग अपने जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हो गए, ठीक है, जैसे बीकानेर की जो आप बोल सकते हो मेयर अभी कौन है? सुशीला कंवर है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने चूज किया है वो कंट्रोल करते हैं। So the municipal chairperson is the political head of the municipality, and in a municipal corporation such an officer is called mayor. Political head क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत बार अराइज हो जाता है। म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन कौन होता है या पॉलिटिकल हेड कौन होता है, उसको हम ऑफिसर बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, ठीक है। बीकानेर की मेयर आप सबको पता है ये कौन है? मिसेस सुशीला कंवर है, ठीक है। फर्स्ट लेडी ऑफ बीकानेर, फर्स्ट पर्सन ऑफ बीकानेर, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी आप फर्स्ट जो मेयर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। Okay, so class, this new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. So, in conclusion, I want to say like जो ये local government का experiment है हमारे country में, सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है हमारे वर्ल्ड में। किसी भी कंट्री में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जो लोकल गवर्नमेंट वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है हमारा, ठीक है, ये ऑब्वियसली जितने डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? जितने ज्यादा लोगों के पास पावर होगी उतनी अच्छी आपकी डेमोक्रेसी है। सो it has helped to deepen democracy in our country, and it also increased women's representation. वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हुआ है और ऑब्वियसली इससे इक्वालिटी को लाने की कोशिश की गई है। वुमेन की वॉइसेस जो है अब सुनी जाती है, ओपिनियन सुने जाते हैं। So class, this is all about this chapter. Thank you so much for joining this class. So basically we have done with this chapter.